اچھا، آج ہم اس دستاویز کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں. ایڈوانسڈ جی پی ٹی ماڈل، سیاق و سباق اور ہدایات. کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں اس میں. جی بالکل، یہ خاص طور پر جی پی ٹی 4.1 کے بارے میں ہے. اس کی صلاحیتیں، جیسے وہ لمبا چوڑا مواد کیسے سمجھتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں سوچنے کا عمل کیسے ہوتا ہے، اور ہدایات پر کتنا صحیح چلتا ہے. ہاں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے خاص باتیں نکال لیں تاکہ سمجھ آئے کہ بھئی اس جدید ماڈل سے بہترین کام کیسے لیا جائے. چلیں پھر شروع کرتے ہیں. جی، سب سے پہلے تو یہ لمبا سیاق و سباق، لانگ کانٹیکسٹ. یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ ٹوکنز تک. یہ تو مطلب بہت زیادہ ہے، تقریباً 7.5 لاکھ الفاظ بنتے. جی ہاں، یہ واقعی ایک بڑی بات ہے، خاص طور پر اگر آپ کے پاس بہت بڑے ڈاکیومنٹس ہوں، ان کا خلاصہ کرنا ہو، معلومات نکالنی ہو. لیکن دستاویز یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اگر کام بہت زیادہ پیچیدہ ہو، مطلب پورے مواد کی بنیاد پر کوئی گہری سوچ بچار کرنی ہو، تو اتنے بڑے سیاق و سباق میں کارکردگی شاید تھوڑی کم ہو جائے. اچھا، تو یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. صحیح، یعنی طاقتور تو ہے لیکن حدود بھی ہیں. اچھا، ایک اور دلچسپ چیز ہے، وہ ہے سیاق و سباق پر انحصار کو ٹیون کرنا. جی، مطلب ماڈل کو یہ کیسے بتائیں کہ کب صرف دیا گیا مواد استعمال کرے اور کب اپنی سمجھ بوجھ سے کام لے. اس بارے میں کیا کہتی ہے دستاویز؟ اس کے لیے انہوں نے خاص ہدایات دی ہیں. آپ صاف صاف کہہ سکتے ہیں کہ بھائی صرف اسی مواد سے جواب دو جو میں نے دیا ہے. یا پھر آپ اسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا جو اندرونی علم ہے وہ بھی استعمال کر لے. تو یہ کنٹرول کافی اہم ہے تاکہ وہ غیر ضروری باتیں نہ شامل کرے. ٹھیک، یعنی درستی کے لیے یہ ضروری ہے. اچھا، اور پرومپٹ کی ترتیب، خاص طور پر اتنے لمبے سیاق و سباق کے ساتھ، کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم ہدایات کہاں لکھتے ہیں، شروع میں، آخر میں؟ جی بالکل فرق پڑتا ہے. دستاویز کہتی ہے کہ بہترین نتائج کے لیے جو اہم ہدایات ہیں وہ مواد کی شروع اور آخر دونوں جگہ دہرا دیں. اوہ، دونوں جگہ؟ جی، اور اگر صرف ایک جگہ ممکن ہو تو شروع میں رکھنا بہتر ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو راستہ سمجھا رہے ہوں تو پہلے منزل بتائیں اور پھر پہنچنے سے ذرا پہلے یاد دلا دیں کہ اب مڑنا ہے. ہاں صحیح، یہ اچھی ٹپ ہے. اچھا، اب آتے ہیں سوچ کے سلسلے پر، چین آف تھاٹ، COT. جی، دستاویز کہتی ہے کہ یہ ماڈل بنیادی طور پر استدلال یعنی ریزننگ کے لیے نہیں بنا، لیکن COT سے مدد ملتی ہے. کیا یہ واقعی ماڈل کو سوچنا سکھا سکتا ہے؟ سکھانے سے زیادہ یہ اسے ایک طریقہ کار دیتا ہے. COT کا مطلب ہے ماڈل کو کہنا کہ بھائی جواب دینے سے پہلے ذرا قدم بہ قدم سوچو. قدم بہ قدم؟ ہاں، پہلے مسئلے کو سمجھو، پھر متعلقہ معلومات نکالو اور پھر کوئی نتیجہ اخذ کرو. دستاویز میں ایک بنیادی COT پرومپٹ بھی دیا گیا ہے. اچھا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اسے بہتر کیسے بنایا جائے، جیسے سوال کا تجزیہ، سیاق و سباق کا تجزیہ اور پھر خلاصہ سازی، یعنی معلومات کو ملا کر کوئی نئی بات بنانا. تو گویا ہم اسے بہتر جواب دینے کے لیے ایک طرح سے ٹریننگ دے رہے ہیں. بالکل، رہنمائی کر رہے ہیں. اور آخری اہم نقطہ، ہدایات پر عمل. دستاویز کہتی ہے کہ GPT 4.1 ہدایات پر بہت سختی سے عمل کرتا ہے. جی ہاں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری ہدایات ذرا بھی واضح نہ ہو تو گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. یہ ماڈل ہدایات کو بہت لفظی طور پر لیتا ہے، بہت لٹرل. اچھا جی، تو ڈیولپرز کو بہت ہی واضح اور مخصوص ہونا پڑے گا. جو پرانے ماڈلز کے لیے پرومپٹس لکھے تھے وہ شاید یہاں سیدھے کام نہ کریں. دستاویز ایک طریقہ بھی بتاتی ہے کہ پہلے عمومی اصول بتائیں، پھر مخصوص رویے کی تفصیل دیں، اور اگر ضرورت ہو تو قدم بہ قدم عمل بھی لکھ دیں. اور کیا کچھ عام غلطیوں کا بھی ذکر ہے جن سے بچنا چاہیے؟ ہاں، کچھ مثالیں دی ہیں، جیسے ماڈل کا کسی اصول پر اندھا دھند عمل کرنا چاہے معلومات پوری نہ بھی ہو. مثلاً واضح ہدایات سے، مثلاً یہ بتا دیں کہ اگر معلومات کم ہو تو کیا کرنا ہے، یہ نہ کہو کہ کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک. تو خلاصہ یہ ہوا کہ GPT 4.1 واقعی بہت قابل ماڈل ہے، خاص طور پر جب لمبا چوڑا مواد ہو یا ہدایات پر عمل کرنا ہو. جی، لیکن اس سے صحیح کام لینے کے لیے ہمیں اپنی ہدایات پر بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا، ان کی ساخت، سوچ کا طریقہ اور وضاحت. بالکل. سب سے اہم بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ ماڈل ہدایات کو کتنا لفظی لیتا ہے تاکہ کوئی غیر متوقع نتیجہ نہ نکلے. صحیح.
इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। ये शायद सबसे नाजुक मामला है। ये मॉडल्स हिदायत को बहुत बहुत लफ्जी तौर पर लेते हैं। लफ्जी तौर पर? अच्छा। जी, इसलिए हिदायत बिल्कुल साफ होनी चाहिए, वाज़ेह हों, उनमें कोई इबाहम ना हो। जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो या धरें दो हिदायत आपस में टकरा रही हों, जैसे आप कहें सिर्फ इस फाइल को देखो और साथ ही कह दें लेकिन ताजा तरीन खबरें भी शामिल कर दो, हाँ, ये तो गड़बड़ हो सकती है। तो मॉडल कंफ्यूज हो सकता है और आम तौर पर वो फिर आखिरी वाली हिदायत को पकड़ लेता है। अच्छा, आखिरी वाली को? जी, तो अगर हमें जवाब किसी खास फॉर्मेट में चाहिए हो, जैसे मान लें जेसॉन फॉर्मेट में, हाँ, ये अक्सर होता है, तो बिल्कुल साफ लिखना होगा। जवाब सिर्फ जेसॉन फॉर्मेट में दें और बेहतर यह है कि एक छोटी सी मिसाल भी साथ दे दें। मिसाल भी? अच्छा जी, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे। और गैर जरूरी तफसील से बचने के लिए ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ जवाब दें, कोई इजाफी तमहीद या वजाहत नहीं। जितनी वाज़ेह हिदायत उतना बेहतर नतीजा। तो खुलासा ये निकला कि इन एआई मॉडल्स से बेहतरीन काम लेने के लिए अगर मालूमात बहुत ज्यादा है तो तवील सियाको सबाक की सलाहियत इस्तेमाल करें और हिदायत शुरू और आखिर में दें। जी, अगर सवाल पेचीदा है तो एआई को मरहलावार सोचने को कहें। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, अपनी हिदायत हमेशा बिल्कुल वाज़े, मुख्तसर और तजादात से पाक रखें। यकीनन इन उसूलों को अगर समझकर इस्तेमाल किया जाए तो एआई की कारकर्दगी में वाकई बहुत फर्क पड़ सकता है। असल खेल यही है कि आप काम की नौयत को समझकर सही तकनीक और वाज़ेह हिदायत कैसे देते हैं। और आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं। जी जरूर। अगर ये एआई मॉडल हिदायत को इतना लफ्जी समझता है तो क्या ये हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर नहीं करता कि हम इंसान एक दूसरे को पेचीदा बातें कैसे समझाते हैं? दिलचस्प नुक्ता है। क्या हमें भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा गैर मुबहम होने की जरूरत है? शायद GPT 4.1 जैसे जदीद सिस्टम्स को मौसर हिदायत देने के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास एक गाइड से कुछ अहम बातें हैं कि आम गलतियां क्या होती हैं, बेहतर नतीजे कैसे मिलें, और एक कस्टमर सर्विस एजेंट की मिसाल भी है। जी बिल्कुल। और आज की गुफ्तगू का मकसद असल में ये समझना है कि ये वाज़ेह और आप कह लें मखसूस हिदायत इतनी जरूरी क्यों है। ठीक है। ये सिर्फ मॉडल को गलत मालूमात देने या टूल्स गलत इस्तेमाल करने जैसी चीजों से नहीं बचाते, बल्कि ये भी यकीनी बनाती हैं कि हमें वही नतीजा मिले जो हम असल में चाह रहे हैं। यानी एक अच्छा प्रॉम्प्ट या हिदायतनामा बेहतर कारकर्दगी की कुंजी है। ठीक, तो कुछ आम गलतियों से शुरू करते हैं। गाइड में एक जिक्र है कि अगर मॉडल को बहुत सख्ती से कहें कि एक खास रवैया अपनाओ तो वो शायद मालूमात ना होने पर भी टूल इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ऐसा है? जी हाँ, ये एक बहुत आम मसला है। मॉडल बाज़-औक़ात हिदायत की इतनी पाबंदी करता है ना कि वो खाली वैल्यूज के साथ भी टूल कॉल कर सकता है, यानी मालूमात लेने की कोशिश कर सकता है। और एक और मसला मिसालों का है। अगर आप मिसाल के तौर पर कुछ जुमले दें तो मॉडल अक्सर उन्हीं को दोहराता रहता है बार बार। अच्छा, तो गुफ्तगू बहुत दोहराई भी सी लगती होगी। बिल्कुल गैर फितरी। इसकी वजह यह है कि मॉडल उन मिसालों को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे बैठता है। ये तो दिलचस्प बात है। तो इन मसाइल से बचने के लिए क्या तरीके हैं फिर? देखिए, सबसे अहम चीज वाज़ेह हिदायत, साफ साफ बताना। अगर टूल कॉल के लिए मालूमात पूरी नहीं है ना तो मॉडल को बताएं कि भाई सारिफ से मजीद पूछो, ठीक, खुद से कुछ मत करो। जी। दूसरा, मिसाल के जुमलों के बारे में भी हिदायत दें कि उन्हें सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करें बल्कि जरूरत के मुताबिक ढाल ले, यानी उन्हें एक गाइडलाइन समझें, हुक्म नहीं। बिल्कुल। और आखिर में जवाब कैसा दिखना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या हो, इसके लिए भी मखसूस हिदायत दें, शायद कुछ मिसालें भी। समझ गया। तो तफसील और वजाहत बहुत अहम है। गाइड में एक फर्जी न्यू टेलको कस्टमर सर्विस एजेंट की मिसाल भी दी गई है, वो काफी तफसीली लग रही थी। जी हाँ, वो मिसाल बहुत अच्छी है। वो बेहतरीन तरीकों को अमली तौर पर दिखाती है। इसमें सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या करना है बल्कि ये भी कि कैसे करना है। मसलन एक मखसूस सलाम से बात शुरू करना, हेलो यूव रीच्ड न्यू टेलको। हकाइक जानने के लिए हमेशा टूल का इस्तेमाल करना, मालूमात कम हो तो सारिफ से पूछना। अच्छा,
इंसानी एजेंट को मुंतकिली की दरखास्त पर फौरन अमल करना, और ये भी कि किन मौज़ूआत पर बात नहीं करनी। और दिलचस्प बात ये कि इसमें लहजा कैसा हो, यानी प्रोफेशनल, मुख्तसर, इमोजी इस्तेमाल करनी है या नहीं, हवाला कैसे देना है, ये सब बताया गया है। वाह, यानी एक तरह से पूरा किरदार और उसके काम करने का तरीका ही बता दिया प्रॉम्प्ट में। तो एक अच्छे मौसर प्रॉम्प्ट की साख्त फिर कैसी होती है? अमूमन एक अच्छे प्रॉम्प्ट में कई हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो किरदार और मकसद की वजाहत, जैसे आप एक मददगार कस्टमर सर्विस एजेंट हैं। ठीक है। फिर तफसीली हिदायत, जिन्हें आप चाहें तो छोटे हिस्सों में यानी ज़ैली जुमरों में बांट सकते हैं। इसके बाद इस्तदलाल के मराहिल, यानी मॉडल सोचेगा कैसे, फिर मतलूबा आउटपुट फॉर्मेट, कुछ मिसालें, गुफ्तगू का सियाको सबाक, और आखिर में कुछ हतमी हिदायत। तो वो जो न्यू टेलको एजेंट वाली मिसाल थी, उसमें अगर कोई सारिफ समझे फैमिली प्लान के बारे में पूछता है तो क्या होता है? इस सूरत में एजेंट पहले सलाम करेगा, सारिफ की दरखास्त दोहराएगा और बताएगा कि वो मालूमात के लिए टूल इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो लुक अप पॉलिसी डॉक्यूमेंट नामी टूल को कॉल करेगा, शायद फैमिली प्लान ऑप्शंस के मौजू के साथ। ठीक। जब टूल से जवाब आ जाएगा तो एजेंट पॉलिसी की तफसीलात, कीमत और एक हवाला जैसे फैमिली प्लान पॉलिसी आईडी 010 के साथ जवाब देगा। ये तो काफी मुनज्जम और साफ तरीका लगता है। अच्छा, गाइड में प्रॉम्प्ट लिखने के लिए कुछ उमूमी मशवरे भी थे, खासतौर पर डिलिमिटर्स के इस्तेमाल के बारे में। ये क्या चीजें हैं और क्यों अहम है? जी, डिलिमिटर्स बुनियादी तौर पर निशानियां होती हैं। ये प्रॉम्प्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग करती हैं, जैसे ये हिदायत है, ये मिसाल है, ये सियाको सबाक है। अच्छा, ताकि मॉडल उलझे नहीं। बिल्कुल, ताकि मॉडल आसानी से समझ सके। मार्क डाउन, जैसे हेडिंग्स के लिए हैशटैग का निशान या फिर XML टैग्स, ये आम तौर पर मौसर रहते हैं। XML खास तौर पर नेस्टिंग के लिए मुफीद है, यानी मालूमात को एक दूसरे के अंदर रखना, और मेटा डेटा शामिल करने के लिए भी, यानी मालूमात के बारे में इजाफी मालूमात। और अगर बहुत सारा मवाद देना हो, जैसे कई दस्तावेजात से मालूमात देनी हो। हाँ, लंबे सियाको सबाक के लिए तजुर्बात बताते हैं कि XML या फिर एक सादा फॉर्मेट जैसे id.title.content बेहतर काम करता है। JSON जो कोडिंग में आम है, वो यहाँ थोड़ा, मेरा मतलब है, ज्यादा तफसीली हो सकता है, और उसमें खास हुरूफ को तब्दील करने यानी कैरेक्टर एस्केपिंग की जरूरत पड़ सकती है, जो उसे कम कारआमद बनाता है। ठीक है, क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जिनसे मोहतात रहना चाहिए? कोई इंतबाहात? जी हाँ, कुछ चीजें हैं। कभी कभी मॉडल बहुत लंबे या दोहराए जाने वाले जवाब देने में हिचकिचाता है। अच्छा, अगर ऐसा हो तो इसे सख्ती से कहें कि पूरी मालूमात दे, या फिर आप मसले को छोटे हिस्सों में बांट दें। एक और चीज है मुतवाजी टूल कॉल्स, यानी मॉडल का एक साथ एक से ज्यादा टूल्स इस्तेमाल करना। ये फीचर कभी कभार ठीक काम नहीं करता, तो इसे टेस्ट करना जरूरी है। अगर मसला हो तो इसे बंद करने का ऑप्शन भी होता है। तो खुलासा ये हुआ कि AI मॉडल से बेहतरीन काम लेने के लिए हमें बहुत वाज़ेह, मुनज़्ज़म और तफसीली हिदायत देनी पड़ती हैं। सही साख्त, मिसालों का दुरुस्त इस्तेमाल और मुमकिना मसाइल का पहले से अंदाजा, ये सब मिलकर हमें वो नताइज हासिल करने में मदद देते हैं जो हम चाहते हैं। बिल्कुल, और ये सब हमें एक बड़े और दिलचस्प सवाल की तरफ भी लाता है ना? वो क्या? कि जब हम AI को इतना ज्यादा मखसूस बना देते हैं, इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा देते हैं ताकि वो काबिले एतमाद रहे, तो क्या हम अनजाने में उसकी जो तख्लीकी सलाहियत है या गैर मुतवक्के पेचीदा हालात से निमटने की जो लचक है, उसे महदूद तो नहीं कर रहे? ये तो वाकई एक अहम नुक्ता है। जी, तो ये काबिले भरोसा होने और लचकदार होने के दरमियान तवाजुन कैसे कायम किया जाए, ये एक गौर तलब बात है। कोड में तब्दीलियों को मैनेज करने के खास तरीके पर बात करता है, उसे फाइल डिफ्स कहा जा रहा है। जी, और खास तौर पर एक फॉर्मेट है V4A, और इसके साथ एक टूल का जिक्र है। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये खासकर GPT 4.1 जैसे नए AI मॉडल्स के साथ कैसे काम करता है या क्यों अहम है।
हाँ बिल्कुल, देखिए डेवलपर्स के लिए तो रोज का काम है ये कोड की तब्दीलियों को ट्रैक करना, उन्हें लागू करना। सही। वर्जन कंट्रोल जैसे गिट में तो डिव्स बुनियादी चीजें हैं, लेकिन यहां बात हो रही है एक मखसूस ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये V4A फॉर्मेट आखिर है क्या, क्यों बनाया गया, और ये जो रिवायती तरीके हैं इनसे मुख्तलिफ कैसे है। ठीक है। तो ये V4A फॉर्मेट मवाद तो कहता है कि कुछ खास है इसमें। आइए देखते हैं क्या है, क्या चीज इसे मुनफरिद बनाती है। असल में इस फॉर्मेट की बुनियाद 3 आप कह लें फाइल एक्शंस पर है। ऐड यानी नई फाइल डालना, जी। अपडेट यानी मौजूदा फाइल को बदलना, और डिलीट मतलब फाइल हटा देना। ठीक है, ऐड, अपडेट, डिलीट। हाँ, और जो अपडेट एक्शन है ना, उसके लिए ये कोड के छोटे टुकड़ों स्निपेट्स का इस्तेमाल करता है। स्निपेट्स? जी, हर स्निपेट में पुरानी कोड लाइन से पहले एक माइनस लगा होता है और नई लाइन से पहले प्लस। इससे साफ पता चलता है कि क्या बदला है। ये तो काफी म्यारी डिफ फॉर्मेट जैसा लग रहा है। फिर उसमें नया क्या है, खासतौर पर वो एआई वाली बात? नयापन इसके कॉन्टेक्स्ट यानी स्याको सबाक को हैंडल करने के तरीके में है। जो रिवायती यूनिफाइड डिफ है ना, वो अक्सर लाइन नंबर्स पर बहुत ज्यादा मतलब इन्हिसार करता है। हाँ, वो तो है। लेकिन आप सोचें, अगर कोड में सिर्फ कह ले फॉर्मेटिंग बदली या कुछ कमेंट्स डाल दिए तो लाइन नंबर तो हिल जाते हैं। बिल्कुल, और पुराना डिफ फिर काम नहीं करता। सही कहा। V4A इसी मसले से बचने के लिए हर तब्दीली के ऊपर और नीचे कोड की 3 लाइनें शामिल करता है, कॉन्टेक्स्ट के तौर पर काफी होता है। मतलब अगर वही कोड कई जगह हो फाइल में? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर तो ये काफी है, लेकिन अगर वाकई वो कोड का हिस्सा फाइल में कई बार आ रहा हो तो ये फॉर्मेट एक खास एट ऑपरेटर इस्तेमाल करता है। एट ऑपरेटर? जी, इस ऑपरेटर के साथ वो क्लास या फंक्शन का नाम भी बता देता है जहां तब्दीली होनी है। इस तरह ज्यादा पक्की शनाख्त हो जाती है। और यही चीज एआई के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एआई मॉडल्स जब कोड लिखते हैं तो अक्सर छोटी मोटी चीजें बदल देते हैं, वेरिएबल नाम, कमेंट्स वगैरह। हाँ, जो लाइन नंबर्स को खराब कर देती हैं। बिल्कुल। तो ये सियाको सबाक पर मबनी शनाख्त जो है वो इन तब्दीलियों के बावजूद ज्यादा काबिल एतमाद रहती है। ये बात तो समझ आती है कि एआई से जो कोड बन रहा है उसे अप्लाई करना आसान हो जाता होगा। मवाद में एक अप्लाई पैच.y टूल का भी जिक्र है, इसका क्या काम है? ये टूल बेसिकली एआई से जो कोड मिला और एक पैच प्रीव्यू के साथ जो कोड बना, उनके दरमियान कोड तब्दीली को अप्लाई करने के लिए ही बना है। जी, वो एक पाइथन स्क्रिप्ट है। समझ लें कि V4A फॉर्मेट के साथ एक रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन दी गई है। अच्छा, यानी एक मिसाल कि उसे इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, वो दिखाता है कि V4A फाइल में लिखी तब्दीलियों को असल फाइलों पर लागू कैसे करना है। वो स्क्रिप्ट V4A फाइल को पढ़ता है, समझता है कि कौन सी फाइल ऐड करनी है, अपडेट करनी है या डिलीट, और फिर वो कर देता है। जी, और फिर वो तब्दीलियां फाइल सिस्टम में कर देता है। तो ये फॉर्मेट सिर्फ एक थियरी नहीं रहता, बल्कि एक काबिल इस्तेमाल चीज बन जाता है। ठीक है, तो V4A एक तरीका हुआ। क्या मवाद में इसी मसले के दूसरे हल भी बताए गए हैं? हाँ, मुख्तसर तौर पर 2 और फॉर्मेट्स का जिक्र है। एक है सर्च रिप्लेस जैसा फॉर्मेट, यानी ढूंढो और बदल दो। बिल्कुल, वो कोड के ब्लॉक्स को तलाश करके उन्हें नए ब्लॉक से बदलने की हिदायत देता है। और दूसरा एक सूडो XML फॉर्मेट है जो तब्दीलियों को XML जैसे टैग्स में लिखकर बयान करता है। अच्छा, को स्याको सबाक से या फिर वाज़े मार्कर से पहचानते हैं। तो गोया मुख्तलिफ लोग या टूल्स एक ही बुनियादी मसले का हल निकाल रहे हैं कि लाइन नंबर्स बदलने से जो नजाकत पैदा होती है उससे कैसे बचा जाए, बिल्कुल, खासतौर पर जब एआई बीच में आ रहा हो। आपने सही पकड़ा। ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स यही दिखा रहे हैं कि कोड की तब्दीलियों को बयान करने के लिए ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचकदार तरीकों की जरूरत है। मकसद यही है कि चाहे कोड में छोटी मोटी गैर फाल तब्दीलियां भी हो, पैच फिर भी सही जगह लग जाए। तो अगर हम ये सारी बातचीत समेटें तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? लुब्बे लुबाब क्या है? खुलासा ये है कि हम कोड डिफ्स को आप कह लें इर्तका पजीर होते देख रहे हैं। वो लाइन नंबर्स की कैद से निकलकर स्याको सबाक पर मबनी शनाख्त की तरफ जा रहे हैं।
V4A फॉर्मेट, वो अप्लाई पैच टूल और जो दूसरे मुतबादल जिक्र हुए वो सब इसी ट्रेंड की मिसालें हैं। ये तरीका न सिर्फ डेवलपर्स के लिए बल्कि खास तौर पर AI से बनने वाली कोड तब्दीलियों को काबिल एतमाद तरीके से हैंडल करने के लिए अहम है। ये सिर्फ पैच लगाने से आगे की बात है। ये वाकई काफी दिलचस्प है। इससे तो मुस्तकबिल में हम जैसे कोड के साथ काम करते हैं वो तरीका बदल सकता है। और यही वो नुक्ता है जिस पर आखिर में सोचना चाहिए। अगर हम ये सियाको सबाक पर मबनी लाइन नंबर से आजाद डेफ्स को अपना लेते हैं तो ये मुस्तकबिल के कोड एडिटर्स, रिव्यू टूल्स या शायद खुदकार कोडिंग एजेंट्स को कैसे मुतासिर कर सकता है? क्या इससे कोड को समझने, उसमें तरमीम करने और AI के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर बनाने के नए ज्यादा ताकतवर रास्ते खुल सकते हैं जिनका अभी हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर रहे?